حضرت بایزید بستامی کا ہی واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 20 سال کی تھی، تقریباً 20 سال کی۔ میری ماں نے کہا بیٹا آج پتہ نہیں کیوں دل نہیں لگ رہا ہے، تو میرے پاس آ کے سو جا، تو میرے پاس آ کے سو جا۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں گیا، میری ماں کو نیند آئی تو میں نے سوچا کہ تکیہ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہوں، سبحان اللہ، تکیہ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہوں، تو میرے ہاتھ پہ سر رکھ کے میری ماں سو گئی۔ کتنی دیر ہاتھ رکھ کے سلاؤ گے؟ اپنے بچے کو بھی سلاتے ہو تو 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں، ہے نا؟ مگر حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ رکھا، میری ماں تکیہ بنا کر کے میرے ہاتھ کا اور سو گئی۔ جب وہ نیند میں آئی تو پھر میں نے سوچا کہ میرے ہاتھ میں درد تو ہو رہا ہے مگر میں ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا، سبحان اللہ، ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا، کیونکہ ماں کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے، سبحان اللہ، ماں کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ کہنے لگے کہ کتنی دیر تک؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں سورہ اخلاص کا وظیفہ کر رہا تھا اور میں نے 10,000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا، اللہ اللہ، 10,000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا، تب تک میری ماں سوئی رہی اور میں نے اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹایا۔ اور اسی کی بنا پر میرا 20 سال کی عمر میں میرا ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا، کام نہیں کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی کتنی فرما برداری کی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، ارے جس نبی نے یہ کہا ہو کہ میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اس ماں کا مرتبہ کتنا ہوگا نا۔ ایک بندہ آتا ہے بارگاہ رسالت میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک ایسی گرم ریت جہاں پہ اگر گوشت رکھا جائے تو گوشت کا کباب بن جائے گا، ایسی گرم والی جگہ پہ میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے میں نے وہاں سے وہ جگہ پار کرائی ہے، پیدل سفر کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تو چھوٹا تھا، جب تو بچہ تھا اور تو نے بستر کو گیلا کر دیا تھا، سردی کا مہینہ تھا، بستر کو گیلا کرنے کے بعد تیری ماں نے جہاں سوکھے پہ سوئی تھی اس سوکھی جگہ پہ تجھے سلایا تھا، اور گیلی جگہ جس جگہ کو تو نے گیلا کیا تھا اس گیلی جگہ کو خود سوئی تھی، اس ایک رات کا حق بھی نہیں ادا کر پایا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سوچتے ہیں ماں باپ کا حق ادا کر دیا، کما کے کھلا دیا۔ تو بارگاہ رسالت میں ایک بندہ آتا، یا رسول اللہ میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کے اپنی ماں کو 7 بار حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا اس پیدا ہونے کے وقت میں جو درد تیری ماں نے برداشت کیا تھا اس درد کا ایک جھٹکے کا حق نہیں ادا کر پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ ماں باپ کے حق ادا نہ کرنے کی بات اگر دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی رسول کے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک تھے حضرت جریج، تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، تو حضرت جریج کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت جریج جو ہے
बहुत पाबंदे सलात थे, अल्लाह की इबादत करते थे, इलाके में चर्चा था उनका कि बहुत नेक आदमी है, वली सिफत आदमी है, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। मगर एक बार उनकी मां आई, नमाज पढ़ रहे थे, मां आई, आवाज दिया जुरैज, तो ये कश्मकश में पड़ गए, नमाज पढ़ूं या मां की बात सुनूं, नमाज पढ़ूं या मां की बात सुनूं। इसी कश्मकश में देर हो गई तो मां उठ के चली गई, मां उठ के चली गई। दोबारा दूसरे दिन भी वही आलम, जब दूसरे दिन नमाज पढ़ रहे थे फिर मां आई, मां ने आवाज दिया जुरैज, फिर नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ते पढ़ते फिर सोचने लगे कि या अल्लाह मैं नमाज पढ़ूं कि मां की बात सुनो। इसी कोशिश में मां चली गई, तीसरे दिन फिर आई, जब फिर आई फिर नमाज पढ़ रहे थे, तीसरे दिन आई जुरैज, नहीं गए तो दुआ कर दिया। बच्चे के लिए दुआ क्या किया मालूम है? कहने लगे या अल्लाह, मां ने दुआ किया था, या अल्लाह जुरैज को तब तक मौत मत देना जब तक इसको एक फाहिशा का चेहरा ना दिखा दे। अल्लाहु अकबर। बस खाली इतना दुआ किया था, इतनी दुआ किया था। आज हम कहते हैं ना, अपनी मां से कहते हैं दुआ करना, मगर जब हम नाफरमानियां करते हैं ना तो ये नहीं सोचते हैं कि मां को तकलीफ हो जाएगी तो क्या होगा। मां की खफगी से खफा अल्लाह है, मां अगर खुश है तो खुश अल्लाह है ना। खाली इतनी बात कही कि मौला जुरैज को मौत ही तब तक मत देना जब तक किसी फाहिशा औरत का मुंह ना दिखा दे। अल्लाह अल्लाह। कुछ दिन गुजरे, एक बड़ी हसीनो जमील औरत हजरत जुरैज के पास आई। उसने सोचा इनकी नीयत में खलल डालूं, मगर हजरत जुरैज अल्लाह के वली थे, मानने वाले कहां थे, नहीं माने। थक गई, वापिस चली गई। एक चरवाहे से मुंह काला करवाया, हामिला हो गई, बच्चा पैदा हुआ। उस औरत ने शोर मचा दिया कि यह बच्चा जुरैज का है, शोर मचा दिया ये बच्चा जुरैज का है। लोगों ने कहा जुरैज इतना पक्का नमाजी है, इतना नेक है, इतना पारसा वाला काम करता है, इतना मुत्तकी परहेजगार है, जुरैज ऐसा नहीं कर सकता। औरत ने कहा यह बच्चा जुरैज का ही है। लोग मान गए, और जब लोग मान गए तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, हजरत जुरैज का घर ढा दिया, जिसमें ये इबादत करते थे वो इबादत गाह भी ढा दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब मारने लगे हजरत जुरैज को, लोगों ने कहा आखिर तुम लोग मार क्यों रहे हो, मामला क्या है? लोगों ने कहा तू खाली नमाज का धोखा देता है हम लोगों को, तू मुत्तकी होने का धोखा देता है और तूने मुंह काला किया है। कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, बुलाओ उस औरत को। जब औरत सामने आई, बच्चे को लेकर के आई, बच्चे के बारे में कहा कि ये जुरैज का लड़का है, ये बच्चा जुरैज का है। हजरत जुरैज ने देखा कि ये मामला तो कुछ और है। हजरत जुरैज ने देखा ये मामला कुछ और है। मेरी मां ने एक बार बद्दुआ किया था, मेरी मां ने कहा था कि किसी फाहिशा औरत का मुंह दिखा दे, आज देख लिया। हजरत जुरैज ने जब देखा ना, भाई नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के वली थे। हजरत जुरैज ने देखा कि जब मेरे ऊपर इल्जाम आ रहा है तो बच्चे को ही बुलाया कि बच्चे तू बता तू किसका बेटा? छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, मैं फला चरवाहे का बेटा, मैं फला चरवाहे का बेटा। लोगों ने कहा जुरैज जो तेरी इबादत गाह हमने तोड़ी है सोने की बनवा के देंगे। हजरत जुरैज ने कहा ना, जैसी मेरी थी वैसी ही बना के दो, क्योंकि मां की नाफरमानी करने पर फाहिशा औरत का मुंह देखना पड़ा। कहीं सोने के चक्कर में कहीं लालच ना आ जाए, रियाकारी ना आ जाए, किसी और सजा का मुर्तकिब हो जाऊं। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा हक मुझ पर किसका? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मां का।
दोबारा सवाल हुआ सबसे ज्यादा हक किसका, फरमाया माँ का। तीसरी बार सवाल हुआ सबसे ज्यादा हक किसका, फरमाया माँ का। चौथी बार सवाल हुआ सबसे ज्यादा हक किसका, कहने लगे बाप का। 4 बार में 3 बार माँ का, 1 बार बाप का, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, है ना। जन्नत तलब करनी है, माँ के कदमों को चूमो। जन्नत में जाना है तो बाप के हाथ को चूमो, और जन्नत का ताला खोलना है, उसकी चाबी चाहिए तो नमाज पढ़ो। नमाज जन्नत की चाबी है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ के कदमों को चूम लोगे और माँ के कदमों को चूमने के बाद माँ की फरमाबरदारी करना शुरू कर दो, खुदा की कसम तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। मगर माँ बाप की फरमाबरदारी जरूरी है, माँ बाप की फरमाबरदारी जरूरी है, क्योंकि माँ बाप की अगर फरमाबरदारी कर दी तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। हम नमाजें पढ़ते रहें और माँ बाप की नाफरमानियां करते रहें तो ये तो ऐसा गुनाह हम कर रहे हैं कि जो दुनिया में हमें मिलने वाला है ना। माँ बाप की फरमाबरदारी इतनी ज्यादा जरूरी है कि हजरत उमर ने अपने बेटे के बारे में ये कह दिया था बेटे को कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे। अल्लाह अल्लाह, अपनी बीवी को तलाक दे दे। अब बेटा बड़ा परेशान कि मेरी बीवी में कमी क्या है आखिर। बारगाहे रिसालत में पहुंचा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद साहब ने तलाक का हुक्म दे दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ बाप का हुक्म है दे दो, ये नहीं कहा वजह तलाश करो। जब माँ बाप का हुक्म है दे दो, फिर ये मत सोचो कि क्या वजह है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, बहुत पाक है, बहुत मुत्तकी है, नमाजों की पाबंद है, सोमो सलात की पाबंद है, मेरे माँ बाप की खिदमत भी करती है। कहने लगे अच्छा बुलाओ अपने बाप को। हजरत उमर आए, उमर से पूछा उमर तुमने तलाक देने का फैसला कर लिया है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब से इसका निकाह मैंने किया है, पहले निकाह से पहले आपके पास 5 वक्त नमाजों की पाबंदी के साथ आपके पीछे नमाज पढ़ता था, बराबर आपकी सोहबत अख्तियार करता था, बराबर आपके पास आके बैठा करता था, मगर जब से निकाह हुआ है तब से ये दूर हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बारगाह से मरदूद हो जाए, इसलिए मैंने इसको कहा है तलाक दे दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल्लाह को कि जाओ, तुम्हारे बाप ने कह दिया तलाक देने के लिए, मगर जाओ एक बार तलाक देना, वो हक भी अदा हो जाएगा, फिर उसके बाद रुजू कर लेना, फिर उसके बाद रुजू कर लेना, तुम्हारा निकाह भी नहीं टूटेगा, माँ बाप की फरमाबरदारी भी हो जाएगी। फिर हजरत उमर को समझाया कि बीवी का भी हक होता है, वहां पे रुकना भी, बीवी के पास वक्त बिताना भी जरूरी है। अगर उसको वक्त नहीं दिया तो फिर घर को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे पास आई है, उसका भी हक है। जब समझाया तो हजरत उमर मान गए, बहरहाल एक तलाक दिया, तलाक देने के बाद फिर रुजू कर लिया। तो कहने का मकसद यह है कि जब हजरत उमर जो 4 मुकर्रर सहाबा में गिनतियां हैं, वो हजरत उमर के जब लड़के की बारी आती है तब भी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बाप के हुक्म की तामील करो। तो आज हम कौन से खेत की मूली है जरा बताओ, है कि नहीं? माँ बाप का अदब जरूरी है कि नहीं? माँ बाप की फरमाबरदारी जरूरी है कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। जिसके माँ बाप जिंदा है फरमाबरदारी करेंगे, और जिसके माँ बाप इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। अपने माँ बाप की कब्रों पे जाया करो, क्योंकि हदीस पाक में आता है जो बेटा अपने माँ बाप की कब्रों में कसरत से जाया करता है, फरिश्ते उस कब्र की जियारत के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं
کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.